The last sermon that I preached, in that sermon, the question that was asked by a Pharisee was, what is the greatest commandment? जो पिछला संदेश मैंने प्रचार किया था, उसमें फरीसी विद्वान ने यीशु मसीह से ये सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा जो कमांड है या आज्ञा है वो क्या है? In today's passage, it is the disciples who are asking another question, and this is equally an important question. आज जो पढ़ा गया हमारे सामने आज का पाठ है, उसमें जो सवाल पूछा जा रहा है और वो सवाल यीशु मसीह के शिष्य ही पूछ रहे हैं आपस में, और फिर वो सवाल प्रभु के पास आता है, और वो सवाल ये है कि परमेश्वर के राज्य में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे महान कौन है? If you're making any notes, then the synoptic parallels can be found in Mark 9:33 to 37 and also Luke 9:46 to 48. तो तीनों synoptic gospels, मत्ती, मार्क और लूका में इस घटना को दर्ज किया गया है. All the three synoptic gospels, they record this important discussion that happens. And the question at hand is, who is the greatest in the kingdom of God? परमेश्वर के राज्य में सबसे महान कौन है? Now this is a debate that rages even today. आज भी ये सवाल, आज भी वाद विवाद में ये सवाल रहता है, और मसीहों के बीच में भी ये सवाल रहता है. हर प्रकार से संसार में ये सवाल रहता है, whether it is Christians, the Christian circle, or any other circle, any other secular circle, the question is very much present. ये सवाल हमारे बीच में रहता है. It is there in a class of students. Who is the best student? जो छात्र हैं उनके बीच में रहता है, सबसे अच्छा छात्र महान कौन है? It is there among employees, कि जो लोग काम करते हैं, जो कर्मचारी हैं, who is the best employee? Who will get the employee of the year award? सबसे अच्छा किसको पुरस्कार मिलेगा? सबसे अच्छा कर्मचारी कौन है? It's in sports. Who's the best cricketer? Who's the best golfer? Who's the best basketball player? खेल के क्षेत्र में है, कौन सबसे अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी है, क्रिकेट का खिलाड़ी है? Who's the best actor? सबसे अच्छा अभिनेता, अभिनेत्री कौन है? And it is there among preachers also. Who's the best preacher? Who's the best, this and that, and it goes on and on and on. ये जो प्रकार का जो सवाल है, ये हमें सुनने को मिलता रहता है. No one remembers who came second. No one remembers who came third. No one remembers who all participated, but we only remember the one who was the best. कौन second आया, third आया, या कितने लोगों ने भाग लिया, वो कोई याद नहीं रखता है. हम बस ये याद रखते हैं कि प्रथम कौन आया था. Now, during the time of Jesus, the Jewish religion had the same problem. यीशु मसीह के समय में जो यहूदी धर्म था, उसमें भी यही समस्या थी. The religious leaders, they wanted to be seen as the greatest in the kingdom of God. जो यहूदी जो अगुवे थे, वो भी अपने आप को परमेश्वर के राज्य में महान देखना चाहते थे, कि वो है जो है वो औरों में से सबसे ऊपर उनका स्थान है, और ये वो देखना चाहते थे. They wanted preferential treatment for themselves. It was a norm. It was a norm that Jewish leaders, religious leaders especially, would get a preferential treatment. कि उनको जो धर्म के जो गुरु थे, जो धर्म के जो शिक्षक थे, अगुवे थे, उनको एक विशेष प्रकार से उनका स्वागत किया जाए, विशेष स्थान उनको हमेशा दिया जाए. And the disciples had been raised up in this system. जो शिष्य थे वो इसी सिस्टम में, इसी वातावरण में पले और बढ़े थे. That emphasized that on greatness of this kind. और इस प्रकार के माहौल में वो बड़े थे, जहाँ पे वो देखते आ रहे थे बचपने से कि कैसे जो धर्म गुरु हैं, वो उनका एक विशेष स्थान जो है वो होना चाहिए.
समाज में. And it is no wonder that they are, if you see all the three parallels, they are discussing among themselves. There's a debate among themselves who is the greatest. और आपस में वो लोग, अगर आप तीनों जगहों पे देखें, जो बाद में देख सकते हैं, जो पैरेलल गॉस्पेल्स हैं, सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स हैं, कैसे आपस में वो वाद विवाद कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है. In fact, the mother of James and John at one place comes to request Jesus that please put my sons one to your left and one to my right. एक जगह हम ये भी देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना की माँ आके यीशु मसीह से विनती करती है कि मेरे पुत्रों को, एक को अपने बाईं तरफ परमेश्वर के राज्य में और एक को अपने दाईं तरफ बैठा लीजिएगा. Such was the understanding of that time. उस समय की ये मानसिकता, सोच थी. Now, if we come to verse 1 of chapter 18, and the question is asked, at that time the disciples came to Jesus and asked, who is the greatest in the kingdom of heaven? And we can immediately see and sense over here that the disciples were off focus. इसको हिंदी में पहला पद पढ़ दीजिए. उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? The disciples were clearly off focus. जो शिष्य थे, उनका जो ध्यान था वो गलत जगह पे लगा हुआ था. उनका ध्यान गलत स्थान पे था. Now, it's a not bad question. It's not a bad question to ask to find out who's the greatest. I mean, in itself. देखा जाए तो सवाल अपने आप में बुरा नहीं है. But the problem is the issue and the intention behind the question. जो गलत बात है या जो समस्या यहाँ पे ये है कि वो सवाल पूछने के पीछे मानसिकता क्या है, कारण क्या था यह सवाल पूछने का. And the mindset is placing oneself above the others. जो मानसिकता या जो सोच यहाँ पे हम देख सकते हैं वो ये है कि अपने आप को औरों से ऊपर या औरों से बड़ा स्थापित करना. The disciples were looking at greatness from a worldly perspective. जो शिष्य थे वो इस महानता को, बड़प्पन को, महानता को एक सांसारिक दृष्टि से देख रहे थे, समझना चाह रहे थे. What makes one great in the eyes of the world? Let's ask that question. संसार की दृष्टि में कोई व्यक्ति जो है वो महान कैसे बनता है? Is it by the achievements? जो चीजें उस व्यक्ति ने अपने जीवन में हासिल करी, क्या उसके कारण? Is it by doing something great for others so that others can see and marvel about it? क्या कुछ ऐसा करके औरों के लिए जिसको देखकर बाकी लोग जो हैं उसकी प्रशंसा करें और उसकी बहुत तारीफ करें? Is it by accumulating a lot of possessions? और क्या वो महानता ऐसे आती है कि बहुत सारा धन, संपत्ति, जायदाद हमने अपने लिए खड़ी कर ली, जमा कर ली, क्या उससे आती है? Now, these days there's the Shark Tank series going on. I have not seen it. I don't need to see it. But I read about it a little bit. That in the Shark Tank, the young professionals, they come and there's a competition who's the best. ये शार्क टैंक में दिखा रहे हैं, आजकल पढ़ा भी होगा सोशल मीडिया में कि ये जो जवान बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, वो आके आपस में दिखा रहे हैं कि कौन सबसे अच्छा मॉडल है, कौन सबसे अच्छा काम करता है. एंड वन ऑफ देम has been adjudged the best. उसमें से एक को सबसे अच्छा खिताब भी मिला है. He has some net worth of 21,300 crores. 21,300 का उनका जो पूरी उनकी वैल्यू है. So does 21,300 crore rupees make you the best? That's the question. And so the world sees your greatness, not because world sees your greatness because of your personal achievements. जो आपने हासिल किया है उसको देख देख के जो संसार है वो आपकी महानता तय करता है. Now the disciples wanted
to be considered the greatest, so that other people would see them at high place with Jesus. That's the truth. जो शिष्य थे वो चाहते थे, उनको अब तक की उनकी समझ यही थी, अब तक की उनकी समझ ये थी कि हम भी परमेश्वर यीशु के साथ उनके इस राज्य में, दे थॉट इट्स एन अर्थली किंगडम, कि उनके इस राज्य में हम भी जो उनके चेले हैं, चुने हुए हैं, हमें भी उच्च स्थान प्राप्त होंगे और सब लोग देख लें कि भाई हम भी यीशु के साथ हैं, एंड अदर्स वुड मार्वल एंड सी जस्ट हाउ ग्रेट वी आर विद जीसस, और बाकी लोग भी देख लें और समझ लें कि हम भी यीशु मसीह के साथ जो है वो महान है. And the whole idea, as I said earlier, the whole idea of being great was off focus. जो महानता के बारे में जो वो सोच रहे थे, वो एकदम केंद्र से एकदम अलग दिशा में उनके विचार जा रहे थे. They had a worldly perspective of greatness. वो संसारिक रीति से समझ रहे थे महानता के बारे में. And today's Christians also struggle with the same issues. अगर हम ये सोचें कि ये तो उस समय की समस्या है, आज की समस्या नहीं है, तो हम गलत हैं. ये आज की समस्या है. Today also Christians struggle with more or less the same questions. We want to be great in the eyes of the world. हम समाज की दृष्टि में बड़े होना चाहते हैं. We want the approval of the world. हम चाहते हैं कि जो संसार है वो हमें सराहे और हमारे कामों को सत्यापित करे कि हम क्या हैं. And unfortunately, the social media has become one means of doing that, where any small thing you do, needs to be captioned and shown to the whole world, and then you wait for the likes and comments. छोटी सी छोटी चीज कुछ हम करते हैं, लोग करते हैं, तो उसका फोटो खींच के उसको लगाना बहुत जरूरी है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, ताकि लोग उसकी तारीफ करना शुरू करें, प्रशंसा करना शुरू करें, उस पे लाइक्स और कमेंट्स आना शुरू करें. And some places you switch off the comments because you don't want to hear the negative. और कहीं-कहीं पे हम कमेंट्स को बंद ऑफ भी कर देते हैं, ताकि कहीं कोई नेगेटिव नकारात्मक कमेंट ना सुनने को मिल जाए, वो हम नहीं सुनना चाहते, वो उसको हम ऑफ कर देते हैं. We only want to hear good things about us, and we think that makes us really great. और हमें उससे लगता है कि उससे हम महान हैं, लोग हमें देख रहे हैं, इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने फॉलो किया, और उससे हमारी महानता बढ़ती है. That's a worldly perspective. So in life, if a man or a woman is merely aiming just for these things, अगर जीवन में एक स्त्री या पुरुष केवल ऐसी बातों को लक्ष्य बना के चलता है, like fulfillment of personal ambition, अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, acquisition of personal power, कि हम व्यक्तिगत रीति से कैसे और शक्तिशाली बन सकते हैं, enjoyment of personal prestige, जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको हम कैसे उसके और मजा ले सकते हैं, जो हमारी प्रतिष्ठा है, exaltation of self, अपने आप को हम कैसे अपनी खुद की बड़ाई करें. I've seen titles on Facebook till yesterday where people are giving captions to themselves. I mean, how great I am type of captions, and people are liking it, people are making hearts on it. Isn't it ridiculous? क्या ये इतनी अजीब सी और हंसने वाली बात नहीं है कि लोग अपनी ही फोटोज लगा के अपने को ही अच्छे अच्छे टाइटल्स दे करके अपनी प्रशंसा में, और लोग उसको भी लाइक करते हैं, उस पर दिल बनाते हैं, उसमें वेरी गुड लिखते हैं. That has become the norm today. How much we want to look great in the eyes of the world. संसार की दृष्टि में कितना हम अपने आप को महान अच्छा दिखाना चाहते हैं. Well, if a person is aiming just at these things, then such a person is aiming at the opposite values of the kingdom of God. अगर कोई व्यक्ति मसीह विशेष रीति से इन्हीं सब बातों पे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके रखा हुआ है, तो फिर सत्य ये है कि जो परमेश्वर के राज्य के जो मूल्य हैं, हम उसके विपरीत दिशा में जा रहे हैं. Actually, we are
following the opposite values of the kingdom of God. And so verses 2 to 4, Jesus gives them the correct perspective, the correct focus. जब 2 से 4 तक देखते हैं तो यीशु मसीह अपने शिष्यों को सही दिशा की ओर केंद्रित करते हैं कि सही दिशा, सही सोच क्या होना चाहिए. And for that, Jesus uses a beautiful living illustration. और इस बात को समझाने के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत सुंदर सा, एक जीता हुआ जीवित उदाहरण अपने शिष्यों के सामने रखा. 2 से 4 तक हिंदी में पढ़ लीजिए. इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे. जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा. Jesus calls a little child. एक छोटे बच्चे को जो वहां उपस्थित रहा होगा, यीशु मसीह उसको बुलाते हैं. And has the child stand beside him. और उस बच्चे को अपने पास में खड़ा कर लेते हैं. In fact, Mark 9:36 says that Jesus took the child in his arms. मरकुस 9:36 में तो ये लिखा हुआ है इस घटना के बारे में कि यीशु ने उस बच्चे को अपने हाथ में उठा के अपनी गोद में बिठा लिया. Now in today's time, you will say it's such a loving and kind gesture. आज के समय में अगर आप इस घटना को देखें कि यीशु ने कैसे छोटे बच्चे को बुलाया, गोद में उठाया, बैठा लिया हाथ से उठा के, और आप कहेंगे तो बहुत ही सुंदर बात है, कितना अच्छा लग रहा होगा वहां पे इस दृश्य को देख के. But not so at that time. It was not a good scene in the Jewish society at that time. ये जो यीशु मसीह ने कार्य किया, ये यहूदियों के बीच में कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं थी. The children of that time had low status in the society, like women. महिलाओं की तरह उस समय यहूदियों के बीच में जो बच्चे थे, उनका भी एक नीचा स्थान माना जाता था. Remember at one time, Jesus had to tell, let the children come to me. एक बार यीशु को कहना पड़ा था कि बच्चों को मेरे पास आने दो. And such an act of what Jesus did would make the Jews frown. और यीशु ने यहाँ पे जो कार्य किया, बच्चे को बुला के सामने लाए, अपने पास बिठाया, खड़ा किया, और अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं उस बच्चे का. इससे जो यहूदी लोग थे उनको गुस्सा, उनकी बाहें तन गई होंगी क्रोध से. But now Jesus uses a child to teach what was true greatness or what is truly important. और इस बच्चे के माध्यम से यीशु मसीह सिखाना चाह रहे हैं कि वास्तव में महानता क्या होती है, या वास्तव में जो विशेष बात होती है, मुख्य बात होती है, वो क्या होती है. And so if we look at a child, I've gathered 3 qualities of a child that can make him or her a symbol of those who are citizens of the kingdom of God. 3 चिन्हों को मैंने लिया है. There can be several more. 3 चिन्हों को मैंने लिया है जो वो महान विशेषताएं, गुण एक बच्चे में से हम देख सकते हैं, जो आवश्यक हैं किसी भी उस व्यक्ति के लिए. वो एक चिन्ह है. It's only a sign. एक चिन्ह है जो दिखाती है कि परमेश्वर के राज्य में जो लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश करना चाह रहे हैं, वो 3 बातें उस बच्चे के, एक छोटे बच्चे में हम देख सकते. Because this is what Jesus said. Jesus said that unless you change and become like the little children, you will never enter the kingdom of heaven. जब तक तुम अपना मन बदल के इस बच्चे की नाई ना बन जाओ, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते. So now let us focus on the child. आइए हम बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें. The first quality in a child is humility. Because in verse 4, Jesus said, whoever humbles himself like the child.
दीनता, एक बच्चे में हम देख सकते हैं दीनता। A child never pushes himself or herself forward on his or her own. एक बच्चा जो है वो कभी अपने आप को आगे खुद नहीं बढ़ाता है। A child does not wish for any prominence. एक बच्चा जो है वो कभी ये नहीं कोशिश करता है कि मुझे अच्छा स्थान मिले, मुझे सबसे आगे मिल जाए, मैं सबसे आगे पहुंच जाऊं, सारा केंद्र मेरे ऊपर आ जाए। बच्चा जो है वो कभी ऐसी कोशिश नहीं करता है। बट ओनली व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग अप, the child learns about the competitive world. लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है और समाज में जाना शुरू करता है, तभी वो बच्चा जो है वो सीखता है ये सारी जो प्रतियोगिताएं हैं और ये जो कंपटीशन है, इसके बारे में धीरे धीरे वो बच्चा सीखना शुरू कर देता है। And then the child starts scrambling for first prize and for first place in schools and other places. और फिर वो बच्चा जो है संसार से सीखता है कि मुझे फर्स्ट आना है और मुझे पहला स्थान चाहिए। And the parents also keep pushing the child, whether it is a baby competition कि बच्चे को उसमें फर्स्ट आना है, whether it is the nursery, the child or the child grows up, you need to have come first, you need to have 100, you need to have 99. And as teachers, those of us who are teachers, we know we struggle with that, with such parents. हम में से जो शिक्षक हैं वो इस मानसिकता को लेकर के हम संघर्ष करते हैं क्योंकि वो माँ बाप जो बच्चों को ढकेलते हैं और इस प्रतियोगिता वाले उसमें माहौल में ढकेलते हैं। And when that happens, the instinctive humility of the child gets left behind. और जब ऐसे धीमे धीमे होता है तो जो बच्चे का स्वभाव था, जो जन्म से स्वभाव था बच्चे का दीनता का, वो धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। बट in a small child, before the child gets corrupted by this world, you can see the humility in the child. लेकिन जिससे पहले एक बच्चे को हम इस दुनिया की चीजों से करप्ट कर दें, उससे पहले हम उस बच्चे में वो दीनता का गुण देख सकते हैं। The second thing that we notice in a child is dependence. दूसरी बात जो हम एक बच्चे में देख सकते हैं वो है दूसरे पर निर्भर रहता है वो बच्चा। It is perfectly natural for a child to be dependent on the parents or on the caretakers. ये एक बच्चे के लिए बिल्कुल स्वाभाविक है कि वो निर्भर रहे अपने माँ बाप पे या जो लोग उसका ध्यान रखते हैं उसके ऊपर निर्भर रहे। The child never thinks that he or she can face the life alone. एक छोटा बच्चा कभी सोचता ही नहीं है कि वो अकेले इस पूरे संसार का सामना कर लेगा, उसे किसी की आवश्यकता नहीं। The child never thinks like that. And the child is perfectly content to be utterly dependent on those who love and care. और बच्चा जो है वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है ये जानते हुए कि पूर्ण रूप से हर एक बात के लिए वो निर्भर करता है माँ बाप पे या उनके ऊपर जो उसका ख्याल रखते हैं। And the third quality of a child is that a child trusts. तीसरी बात ये कि बच्चा जो है वो भरोसा करता है। The child trusts the parents. जो बच्चा है वो अपने माँ बाप पे भरोसा करता है। The child trusts that all the needs will be met. बच्चा भरोसा करता है कि मेरी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति जो भी मुझे चाहिए वो मेरे माँ बाप मुझे दे देंगे। Now, when we were children, we can think of our own times. When we were children, did we ever worry who will give us the clothes, who will give us the food, who will pay the school fees, who will maintain the house, who will maintain the other things? जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे, तो क्या कभी हमने चिंता करी कि हमारे कपड़े कहाँ से आएंगे, हमें खाना कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कौन देगा और बाकी रख रखाव का खर्चा कौन देगा? No, we just trusted our parents and our caretakers. हमने अपने माँ बाप पे या जिसने भी हमारा ख्याल रखा, हमने पूरा भरोसा उनके ऊपर किया। So Jesus takes a child and Jesus says that you need to be like the child, this child. यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हें इस बच्चे के समान बनना है
जो दीन है, द चाइल्ड इज हम्बल, द चाइल्ड इज डिपेंडेंट, जो बच्चा है वो माँ बाप पे निर्भर है, और तुमको भी मुझ पे निर्भर रहना है, टू डिपेंड ऑन द फादर, पिता परमेश्वर पे निर्भर रहना है। एंड द चाइल्ड ट्रस्ट्स, और तुमको भी बच्चे की तरह मेरे ऊपर भरोसा करना है। And so there are two mindsets that now we see before us. जब ये बातों को हम देखते हैं तो दो दृष्टिकोण, two mindsets are before us, one of the adult and one of the child that Jesus is mentioning. और ये जो दो दृष्टिकोण है, these two mindsets, एक जो वयस्क हैं, जो बड़े लोग हैं, और दूसरा जो एक बच्चा है, दो बातें हमारे सामने हैं। As an adult who need recognition, who needs praises, who need power, and all that fills them with so much of pride. और एक बड़े या वयस्क होने के नाते हमें हर वक्त लोगों की सराहना चाहिए, लोग हमारी तारीफ करते रहें, लोग हमारी बड़ाई करते रहें, हमारे कार्यों को पहचानते रहें, हमारा मेंशन होता रहे कहीं ना कहीं, और हमें सामर्थ मिलती रहे। और इसके बाद हम सब जो हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से थोड़ा सा गर्व या घमंड भी करने लगते हैं अपने सारी योग्यताओं के ऊपर, अपने सारे अचीवमेंट्स के ऊपर। वी स्टार्ट टेकिंग सम amount of prudence in all that we do. What about the child? And yes, when we do all that, no, we look for greatness. We look for greatness in the eyes of the world, and from a worldly perspective, we look for greatness. Men love it, women love it, they talk about it, and they post it on the social media. स्त्री और पुरुषों को ये अच्छा लगता है, वो उसके बारे में बातचीत करते हैं, वो इसको अपने सोशल मीडिया पे लगा भी देते हैं। But this mindset, according to Jesus, is a hindrance to the kingdom of God. ये जो सोच है, ये वाली सोच, ये एक रुकावट है हमारे और आपके लिए जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। Now what about the child? As I said earlier, the child is humble, the child is dependent, and the child is trusting. वो बच्चा जो है वो विनम्र है, दीन है, वो दूसरे पर भरोसा करता है और दूसरे पर निर्भर भी है। This is what the Lord desires of us, not those very big things that you can think of, small things. ये छोटी सी तीन बातें हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो इस बात को निर्धारित करेंगी, हमें मूल्य देंगी कि परमेश्वर के राज्य में कैसा होना चाहिए। भरोसा करना, सबसे पहले तो विनम्र करना, अपने आप को विनम्र करना, टू बी हम्बल लाइक अ चाइल्ड। दूसरा, परमेश्वर पे हर बात के लिए निर्भर रहना, टू डिपेंड ऑन गॉड फॉर एवरीथिंग, टू एक्नॉलेज दैट व्हाटएवर वी हैव इज फ्रॉम गॉड। जो भी हमारे पास है, जो भी हमने किया, वो प्रभु की ओर से आया, हम उस पर निर्भर हैं आज भी। एंड ऑल्सो ट्रस्टिंग, कि हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं। लाइक द चाइल्ड ट्रस्ट, वी ऑल्सो ट्रस्ट गॉड, एंड दिस इज व्हाट द लॉर्ड डिजायर्स फ्रॉम अस। ये बात जो है, ये परमेश्वर आपसे और हमसे चाहते हैं। In verse 2, Jesus says, unless you change. I'll read that. He called, verse 3, sorry, and he said, I tell you the truth, unless you change and you become like children, unless you change, you cannot have a little bit of this and a little bit of this. थोड़ा सा हम ऐसे भी रहेंगे और थोड़ा सा 50-50 कर लेते हैं, 70-30 कर लेते हैं। No, Jesus says, unless you change, कि तुम जब तक बदल ना जाओ और इस बच्चे के समान ना बन जाओ, you will never enter the kingdom of God. तुम जो हो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे।
And so I believe for especially the adults, the grown-ups, often it happens that as we get older and as we get more and more experience and as we get more and more adult, कि हम बड़े होते जा रहे हैं और हमें अनुभव मिलता जा रहा है, and we only see of our childhood as something that is past, and we do say in English, oh, there's a little bit of child in everyone, हम ऐसा कहते हैं, and then we forget. हम लोग सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं और कभी-कभी सोचते हैं कि हाँ, हम में से अंदर एक छोटा सा बच्चा कहीं है. Make sure the child is there in you according to Jesus. यीशु के हिसाब से बिल्कुल मत घबराइए. अगर वो जो बच्चा, जिस बच्चे की यीशु मसीह बात कर रहे हैं, निर्धारित कर लीजिए कि ये वाला बच्चा आपके अंदर और मेरे अंदर हो. Make sure this child is there in you and me that Jesus is referring to. And so let's ask ourselves this morning, where is our focus? आज हमारा जो ध्यान है वो कहाँ पे है? Is it on ourself? Is it on our bank balance? Is it on our ambition? Is it on our achievements and all the plans that we have made for ourselves? क्या हमारा ध्यान हमारे ही ऊपर है, हमारे बैंक के खाते पर है, कितना कम हो रहा है, घट रहा है, हमारी महत्वाकांक्षाओं पे है और हमारी उपलब्धियों पे है? हम क्या करना चाहते हैं, अगले 10 साल में क्या करेंगे, 20 साल में क्या करेंगे? Is there where all our focus is? If our focus is only on that, it's in the wrong place. अगर हमारा पूरा ध्यान इसी बात पे लगा हुआ है, तो फिर हमारा ध्यान गलत जगह पे लगा हुआ है. Yes, these things are part and parcel of life, but they should not be the focal point of your life. ये बात जो है, ये सारी बातें जो हैं, ये हमारे जीवन का हिस्सा तो हैं, लेकिन ये हमारे जीवन का केंद्र बिंदु नहीं बनना चाहिए. We need to make sure that our focus is on the humility like Christ, the dependence on God and trust on God. हमारा ध्यान, केंद्र ध्यान किस बात पे होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की तरह दीनता और परमेश्वर पिता के ऊपर हम निर्भर रहते हैं और परमेश्वर पे हम हर बात के लिए भरोसा करते रहें. And as I was listening to the hymn before the message, the hymn said, "How great thou art." जो गीत हम सुन रहे थे, भजन सुन रहे थे संदेश से पहले, उसका शीर्षक ही है प्रभु महान. Who is the greatest in the kingdom of God? Jesus. No one else. यीशु मसीह जो है वो सबसे ऊंचे स्थान पर है. And so Jesus teaches today to his disciples and to us the absolute necessity of being humble, of depending on him and trusting him for everything. कि अगर हमें महान बनना है या महान, कौन सी बात महान है? तो ये बात महान है जब हम दीन हो जाते हैं प्रभु की दृष्टि में, और ये बात हमारे लिए महान है जब हम प्रभु पे निर्भर हो जाते हैं, और ये बात हमारे लिए महान है जब हम परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं. And it's a struggle. As I always say, it's not easy. It's a struggle because of the societies that we have been raised up, whether it is Eastern society or a Western society, doesn't matter. किसी भी हम संस्कृति में किसी भी स्थान पे पले बड़े हों, चाहे हम पाश्चात्य के देशों से आते हों, चाहे हम अपने देश से आते हों, ये एक संघर्ष है. It's always a struggle to embrace humility. It's a struggle to depend on God when there's this whole wave of being self-dependent, and also trusting God in today's time when we really cannot trust anyone else. So I want to close with this, and I want to say that let us approach the throne of grace like little children. कि आज के समय में जब हम लोग सब बहुत ज्यादा घमंड से
भर जाते हैं क्योंकि हम इतना सब कुछ कर लेते हैं। और जब हम अपने आप पे ही निर्भर रहना चाहते हैं और किसी और पे भरोसा नहीं करना चाहते, तो यीशु मसीह हमें इसका विपरीत सिखा रहे हैं। तो जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, तो हम एक बच्चे की नाई, बालक की नाई उसके पास आए। एंड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड टू चेंज, कॉन्स्टेंटली चेंज एंड वर्क ऑन दिस माइंडसेट। और ये जो विचार है, ये जो सोच है हमारी, जो जिस सोच में हम लोग शिष्यों की तरह हम भी अपने आप को इधर-उधर महान दिखाना चाहते हैं, उस सोच को हम बदलें एंड लेट्स embrace the greatness that Jesus proclaimed and he lived. वो महानता जो यीशु मसीह ने सिखाई और वो महानता जो हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, उसको हम अपने जीवनों में भी उसका प्रयोग करें। Let's pray. Heavenly Father, we thank you that again the scriptures are so clear and it's just so opposite of what we think and we get used to of when it comes to our own lives and the values of life. प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपका वचन बहुत स्पष्ट है और खास तौर से जब हम अपने जीवन जीते हैं और जीवन के मूल्यों को जीते हैं, तो कितना विपरीत हमें वचन में देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, बजाय जो हमें संसार सिखाता है। हेल्प अस लॉर्ड टू बी हम्बल and to depend on you and to trust you for everything, and let that be something beautiful in your eyes. परमेश्वर, हम विनम्र बने, हमें अपने आप पे आपके ऊपर निर्भर होना सिखाइए और हमें आपके ऊपर भरोसा करना सिखाइए परमेश्वर, ताकि ये बात जब हमारे जीवन में पूरी हो तो आपकी दृष्टि में ये बहुत ही सुंदर बात बनने पाए। हेल्प अस लॉर्ड टू always oppose the worldly ideas of greatness and all the achievements and certificates that the world may want to confer upon us. Lord, help us to reject it. परमेश्वर, हमें सामर्थ दीजिए, बुद्धि दीजिए कि संसार जब हमको हमारी बड़ाई करे, जब हमको ऊंचा दिखाना चाहे, तो हम उन सब से बचें और हमेशा याद रखें आपने हमें क्या सिखाया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर बीइंग विद अस। हेल्प अस लॉर्ड टू लिव आउट योर वर्ड। प्रभु जी, हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद और आपके वचन को हम अपने जीवनों में पूरा करने पाए। We ask it in Jesus' precious name. Amen.